models is very simple for you all, because students who understand the tenses and to be forms, for them models is a very easy. Models, learning models is very easy for them. But the students who do not understand the models, the to be forms and tenses, for them it is very difficult. So today we are going to study models, and in the models we are going to study all the types of the models, all the types of the models. So it is, and it is going to be a very easy task for you all. Why? Because you studied to be forms, you studied tenses, now you know the formation of the sentences, now you know the formation of the sentences. So learning models is a fun, learning models is a very interesting for you all right. And only what we should know, where to use which model, this is only the task for you all. So I am going to give you a very simple definitions of all the models. So it is going to be a great fun for you all to learn models. So in today's grammar topic we are going to work on models. Today's grammar topic we are going to work on models, and this grammar book is available on our app, and everybody knows about this grammar. This is a general English grammar course, and in the general English grammar course we are going to study the lesson number 32. We have studied a lot of lessons, and still we have to study a lot of lessons, because I'm going to take, you have to study a lot of things, fluency, vocabulary, conversations. So today we are going to work on models. So I'm just going to explain what is models. Models, it means they are the representatives of some meanings, some different meanings than the other sentences formations. Like can, it means they are the models of some meaning, they are the models of some meanings, so they are called models. Can is the model of possibility, can is the model of possibility. Model, it means adarsh, or model, it means the pratibimb. Understand? Pratibimb, that is model. Can आलं की समजायचं की that is the possibility, we are talking about the possibility. Understand? So can, it means I can speak in English, I can speak, sorry, ability, can, it means ability, I'm really sorry for that. Can expresses the ability of the subject, ability of the subject. Like I can speak in English, जे मी इंग्रजी बोलू शकतो. I can swim in the river, मी नदीमध्ये पोहू शकतो. So can is expressing the ability of the subject, ability of the subject. This is the only, and you know where to put the subject and the object and the verb. So first you have to make the sentences of I group, he group, then can, and then verb, and then object. I can speak English, we can speak English, I can swim in the river, we can swim in the river. म्हणजे can म्हणजे काय? can हे ability, योग्यता, क्षमता सांगण्यासाठी, कर्त्याची योग्यता, कर्त्याची क्षमता सांगण्यासाठी आपण काय वापरतो? can वापरतो. जसं I can speak English, मी इंग्रजी बोलू शकतो. I cannot speak I cannot speak कन्नडा, मी कन्नड बोलू शकत नाही. ओके, कॅन यू स्पीक कन्नडा, काय तुम्ही कन्नड बोलू शकता का? हाउ कैन यू स्पीक कन्नडा, तुम्ही कशा प्रकारे कन्नड बोलू शकता? ओके, सो कैन का मतलब क्या होता है? कैन का मतलब होता है कि एबिलिटी, आपकी क्षमता या योग्यता के बारे में हम जब बोलते हैं तब हम क्या यूज करते हैं? कैन यूज करते हैं. आई कैन स्पीक इंग्लिश मतलब मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ. आई कैनॉट स्पीक इंग्लिश मतलब मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ. कैन आई स्पीक कन्नडा, क्या मैं कन्नडा बोल सकता हूँ? वेयर कैन आई स्पीक कन्नडा, मैं कहाँ कन्नडा बोल सकता हूँ? मतलब यू कैन यूज पॉजिटिव सेंटेंस आल्सो, negative sentence also, yes no type questions also, and WH questions also. Okay, all right. So we are going to study the sentences, but now I'm going to just give you the explanation first I will give you the explanation of all the models. Now could, where do we use could? Could is the ability in the past. Could is used ability in the past, ability of the subject in the past, ability of the subject in the past.
म्हणजे कर्त्याची पास्ट मध्ये जी ॲबिलिटी आहे ती सांगण्यासाठी आपण काय वापरतो, कुड वापरतो. जसं आय कुड सी हॉरर मूवी ॲट लास्ट नाईट, म्हणजे मी काल पाठीमागील रात्री हॉरर मूवी बघू शकलो दॅट इज ॲबिलिटी इन द पास्ट. आय कुड डू द प्रेझेंटेशन ऑन द स्टेज येस्टरडे. आय कुड डू द प्रेझेंटेशन ऑन द स्टेज येस्टरडे, म्हणजे मी काल स्टेजवरती प्रेझेंटेशन करू शकलो, दॅट इज कुड इन द पास्ट. अंडरस्टँड? कुड यू डू द प्रेझेंटेशन ऑन द स्टेज येस्टरडे, तुम्ही काल स्टेजवरती प्रेझेंटेशन करू शकला का? सो दॅट इज ऑल्सो करेक्ट. अँड कुडचा वापर प्रश्नार्थक मध्ये विनंतीसाठी होतो. और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुडचा वापर प्रश्नार्थक मध्ये विनंतीसाठी होतो. कुड का जो प्रयोग होता है वो यदि हम प्रश्न के रूप में करते हैं तो उसका मीनिंग होता है रिक्वेस्ट. कुड यू प्लीज टॉक टू मी, क्या आप मेरे साथ बात कर सकते हैं? कुड यू प्लीज पास दैट सॉल्ट, क्या आप वो सॉल्ट पास कर सकते हो? कुड यू राइट एन ईमेल अबाउट दिस प्रोजेक्ट, क्या आप इस प्रोजेक्ट के बारे में एक ईमेल लिख सकते हो? दैट इज कुड. ओके, समझ में आया? कैन इट मीन्स एबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट इन प्रेजेंट. कुड इट मीन्स एबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट इन पास्ट. नाउ डेयर टू इज लाइक हिम्मत असणे, हिम्मत होना मतलब कुछ करने की हिम्मत होना, उसको बोलते डेयर टू. I dare to jump from the 7th floor of the building, मतलब मुझे 7th फ्लोर से छलांग मारने की हिम्मत है, मतलब कोई नीचे वो देख ले सकता है हमें. Do you dare to speak truth in front of your parents, क्या आप में आपके पेरेंट्स के सामने सच बोलने की हिम्मत है? So that is हिम्मत होना. Do you dare to ride a horse, आपको घुड़सवारी करने की हिम्मत है क्या? ये हो गया प्रेजेंट हो गया. डिड यू डेयर टू राइड अ हॉर्स, क्या आप में घुड़सवारी करने की हिम्मत थी? विल यू डेयर टू राइड अ हॉर्स टुमारो, क्या आपको कल घुड़सवारी करने की हिम्मत होगी? डिड ही डेयर टू डू द प्रेजेंटेशन, क्या उसमें प्रेजेंटेशन करने की हिम्मत थी? इन दिस वे डेयर टू हिम्मत है, उसके अर्थ में हम डेयर टू का यूज करते हैं. अब देखो यूज टू का कब यूज करते हैं? यूज टू का हम कब यूज करते हैं? यूज टू मतलब हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट. यूज टू का मतलब क्या होता है? हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट. हैबिचुअल एक्शन मतलब क्या? बचपन में या पास्ट में जो बार बार हो रही थी क्रिया, ऐसी क्रिया को बताने के लिए ऐसी क्रिया को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूज टू का यूज करते हैं. लाइक आई यूज टू वॉच क्रिकेट मैचेस फॉर 8 hours एवरी डे इन माई चाइल्डहुड. आई यूज टू वॉच क्रिकेट आवर्स एवरी डे फॉर 8 hours इन माई चाइल्डहुड, मतलब मैं बचपन में हर रोज क्रिकेट 8 घंटे देखता रहता था. दॅट इज यूज टू. मी असं करत असे, म्हणजे मी लहानपणी 8 तास क्रिकेट बघत असे. तर क्रिकेट बघत असे म्हणजे ती क्रिया पास्ट मध्ये चालू होत असे. सो वी यूज टू. आई यूज टू एक्सरसाइज इन स्कूल डेज, मैं स्कूल के दिनों में एक्सरसाइज करता था. मी शाळेच्या दिवशी व्यायाम करत असे. सो यूज टू इज यूज्ड ओनली इन पास्ट. So what is the positive sentences of used to? I used to speak English in the school, मी शाळेमध्ये इंग्लिश बोलत असे. I did आलं की फर्स्ट फॉर्म येतो. I did not used to speak English in the school. Did not use येणार, used नाही येणार. I did not used to speak English in the school. मी शाळेमध्ये इंग्रजी बोलत नसे. मग येस नो टाइप क्वेश्चन मध्ये काय होणार? Did you used to speak English in the school? काय तुम्ही शाळेमध्ये इंग्रजी बोलत असा? ओके, सो दॅट इज कॉल्ड यूज टू. नाउ मेचा अर्थ काय होतो? पॉसिबिलिटी इन प्रेझेंट.
मेचा अर्थ काय होतो, पॉसिबिलिटी इन प्रेझेंट. ओके, सो इट मे रेन अगेन म्हणजे एखाद वेळेस अजून पाऊस पडू शकतो, एकाध बार और बारिश हो सकती है, होगी नहीं होगी मालूम नहीं, लेकिन हो सकती है ऐसा मेरा अंदाजा है. दैट इज पॉसिबिलिटी. इट मे रेन अगेन. ओके, आई मे गेट द जॉब इन नेक्स्ट मंथ. मुझे नेक्स्ट मंथ में जॉब मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है मिलने की, मालूम नहीं है, मैं कंफर्म नहीं हूं कि मिल सकता है. अंडरस्टैंड? सो दैट इज पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट. इंडिया में विन दिस ईयर्स वर्ल्ड कप मैच. इंडिया इस साल का वर्ल्ड कप मैच जीत सकता है. ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देख रहा हूं मैं अच्छा खेल रही है इसलिए ऐसा हो सकता है. तो तब क्या यूज करेंगे, मे यूज करेंगे. समझ लो मुझे बोलना है कि चेन्नई सुपर किंग्स में विन आईपीएल मैच दिस ईयर. मतलब चेन्नई सुपर किंग्स इस साल भी आईपीएल मैच जीत सकता है. कंफर्म नहीं है, पॉसिबिलिटी है. ऐसा बताना है तो आपको क्या करना है, मे का यूज करना है. ऐसा बताना है तो आपको क्या करना है, मे का यूज करना है. ऑलराइट. सो माइट, व्हेन वी यूज माइट टू टॉक अबाउट. और मे का और एक यूज मैं बता रहा हूं आपको. मे प्रश्नार्थक में, मतलब जब आपको क्वेश्चंस बनाना है, व्हेन यू वांट टू मेक द क्वेश्चंस, देन वी यूज मे एज अ रिक्वेस्ट. मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ. मे आई आस्क क्वेश्चंस, क्या मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ. मे आई लर्न इंग्लिश, मे आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ. मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ. इन दिस वे इफ यू वांट टू मेक द क्वेश्चंस, then we use may. Understand? So may is used as a request also. But when we use may as a in a positive sentence or negative sentence, then we use as a possibility in the past. मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या यूज करना है, ये पॉसिबिलिटी इन द पास्ट में आएगा. और जब ये क्वेश्चन हो जाएगा तब इसका अर्थ क्या होगा, विनती हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा. ऑलराइट. माइट का क्या यूज करते हैं, सेम का भूतकाल हो गया. उसी का भूतकाल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, माइट यूज करेंगे. उसी का भूतकाल करने के लिए क्या यूज करेंगे, माइट यूज करेंगे. आई माइट क्रॉस द, देखो आई मे क्रॉस द रोड मतलब क्या, मैं एकाध बार रोड क्रॉस कर सकता हूं. ओके, मतलब पॉसिबिलिटी है, मेरी रोड क्रॉस करने की पॉसिबिलिटी है. दैट इज आई मे क्रॉस द रोड. और आई माइट क्रॉस द रोड मतलब क्या, मेरी रोड क्रॉस करने की पॉसिबिलिटी थी लेकिन मैं क्रॉस नहीं किया. आई माइट क्रॉस द रोड बट मैंने क्रॉस नहीं किया. I might appear for the MPSC and I may become an IAS officer, but I might not appear for the MPSC. मतलब मैं MPSC में मैं UPSC में अपियर कर सकता था, मैं टेस्ट दे सकता था और मैं IAS ऑफिसर बन सकता था, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया. I might appear for the UPSC exam. I might give a test of I might give an exam of UPSC. I might crack the exam and I might crack the interview and I might get selected as an IAS officer, but I did not do that. लेकिन मैंने वैसा नहीं किया. So that is might. Might मतलब सिर्फ बातों बातों में ही उड़ा देना. You know, कुछ करना तो है नहीं लेकिन ऐसा कर सकता था, वैसा कर सकता था, ये कर सकता था, वो कर सकता था. That is called might. Understand? और may मतलब आगे आगे का उड़ा देना. हाँ, I may come to your home. हाँ, मैं आ सकता हूँ. मतलब मालूम नहीं आएगा ये आएगा. मे लगा दिया तो समझ लेना इसका कोई भरोसा नहीं है. मे लगा दिया बीच में तो समझ लेना इसका कोई भरोसा नहीं है. अंडरस्टैंड? ही मे गेट मैरिड इन नेक्स्ट मंथ मतलब समझ लेना कुछ होने वाला नहीं है. ये आपने अपने ऐसे ही बता. आई मे गेट द जॉब नेक्स्ट ईयर मतलब कुछ होने वाला नहीं है ये, और ऐसे ही एक साल जाने वाला है इसका. अंडरस्टैंड? सो मे मतलब पॉसिबिलिटी है, ये होगा नहीं होगा ये सब भगवान भरोसे है. सो दैट इज मे मतलब प्रेजेंट का भगवान भरोसे होना, और माइट मतलब पास्ट का भगवान भरोसे था. इसमें हिम्मत ही नहीं थी, वो कर ही नहीं पाया, लेकिन मैं कर सकता था, ऐसा कर सकता था, वैसा कर सकता था. दैट वाज द माइट. दैट वाज माइट. ऑट टू मतलब करना चाहिए, या कुछ आवश्यकता है, या आपको किसी को एडवाइस देना है तो हम क्या यूज करते हैं, ऑट टू यूज करते. बट ऑट टू की जगह पर हम शुड का यूज ज्यादा करते हैं. अंग्रेजी में ऑट टू की जगह पर शुड का यूज ज्यादा करते हैं. पुराने अंग्रेजी में ज्यादा लोग ऑट टू यूज करते थे, लेकिन अभी शुड ज्यादा यूज करते हैं. किसी को एडवाइस देना है,
किसी को सजेशंस देना है, तो अभी ought to का ज्यादा यूज नहीं होता है, अभी should का ज्यादा यूज होता है। तो you ought to help the poor, मतलब आपको गरीब लोगों को मदद करने की आवश्यकता है, मतलब आवश्यकता है यह बताने के लिए आपको क्या यूज करना है, ought to यूज करना है। You ought to take bed rest properly, आपको अच्छी तरह से बेड रेस्ट लेने की आवश्यकता है। So that is called ought to, that is called ought to। ओके, अभी मस्ट कब यूज करते हैं? मस्ट यूज करते हैं ऑब्लिगेशन के लिए। मस्ट कब यूज करते हैं? आपको ऑब्लिगेशन के मतलब आपको किसी चीज की सख्ती करनी है, करना ही है भाई, आपको ये करना ही है, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, आपको ये नहीं मिलेगा, वैसा नहीं मिलेगा, ये करना ही है। तो अब आपको क्या यूज करते हैं? मस्ट यूज करते हैं। यू मस्ट पे योर फीस टू अटेंड द नेक्स्ट मंथ्स कोर्स, आपको नेक्स्ट मंथ्स की कोर्स अटेंड करने के लिए फीस पे करना ही है। अंडरस्टैंड? सो दैट इज यू मस्ट पे योर फीस टू अटेंड द नेक्स्ट मंथ्स कोर्स। सेकंड, you must have identity, you must have mask, you must have mask when you go out, आप जब बाहर जाते हो तो आपको मास्क होना जरूरी ही है। must have मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया ना, have had, तो फर्स्ट फॉर्म you must have mask when you go out, आपके पास मास्क होना जरूरी है जब आप बाहर जाते हो। अंडरस्टैंड? सेकंड, you must keep your driving license with you when you are driving, आपको ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखना जरूरी ही है जब आप ड्राइविंग करते हो। अंडरस्टैंड? सो दैट इज मस्ट, that is must। you must appear for the exam if you want to pass in the exam, very simple ये ना, आपको यदि एग्जाम में पास होना है तो एग्जाम में बैठना ही पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड, इफ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको इस दुनिया में यदि सर्वाइव होना है, जीना आगे रखना जारी करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको काम करना ही पड़ेगा, बिना काम के कुछ नहीं होगा। थोड़ा काम करो, ज्यादा काम करो, लगन से काम करो, लेजीपने से काम करो, लेकिन बिना काम किए तो जी नहीं सकता आदमी। अंडरस्टैंड? यू मस्ट वर्क टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड, आपको इस दुनिया में जिंदा रहना जारी रखना है तो आपको काम करना पड़ेगा। अरे सांस लेने का तो काम करना ही पड़ेगा ना। अंडरस्टैंड? सो दैट इज यू मस्ट वर्क हार्ड टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। सो मस्ट मतलब जरूरी है, कंपल्सरी है। यू मस्ट कैरी योर आइडेंटिटी कार्ड, अदरवाइज आई विल नॉट अलाउ यू इन द कंपनी। गार्ड बोलता है कि नहीं, आपको कैरी करना ही है, नहीं तो हम आपको कंपनी में अंदर आने नहीं देंगे। सो दैट इज कॉल्ड यू मस्ट। ऑलराइट? शुड, अभी शुड का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो मस्ट इंपॉर्टेंट है, कैन इंपॉर्टेंट है, मे इंपॉर्टेंट है, शुड इंपॉर्टेंट है, ये और वुड और हैव टू, ये अभी ये जो इंपॉर्टेंट मॉडल्स है ना, सभी मॉडल्स हमने यहाँ लिए हैं। तो शुड का मतलब क्या होता है? शुड का मतलब होता है किसी को उपदेश देना, किसी को सलाह देना। सलाह देना मतलब क्या होता है? वो तो मांग नहीं रहा है, लेकिन हम अपने, यार मेरा दोस्त है उसको बताना चाहिए, मतलब वो माने या न माने, लेकिन हम जो बताते हैं उसको बोलते हैं सलाह। आगे वाला माने या न माने, लेकिन हम जिसको बताते हैं उसको बोलते हैं सलाह, तब हम यूज करना है शुड। लेकिन आगे वाले को मानना ही है, तब हम क्या यूज करते हैं? मस्ट यूज करते हैं। आगे वाले को मानना ही पड़ेगा तब मस्ट, और जब आगे वाला माने या न माने लेकिन चलो बताते हैं, तब उसको बोलते हैं शुड। अंडरस्टैंड? तो यू शुड एक्सेप्ट योर मिस्टेक, मतलब आपको आपकी मिस्टेक माननी चाहिए, मतलब तुम्ही तुमची चूक मानली पाहिजे। चाहिए मतलब मानो या न मानो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मानोगे तो अच्छा है। अंडरस्टैंड? यू शुड रिमाइंड टू मीना टुमारो इज हर एग्जाम, आपको मीना को बताना चाहिए कि उसका कल एग्जाम है। यू शुड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, आपको नया बिजनेस चालू करना चाहिए। You are a brilliant person, so you should not work in the government sector. You should work for your own company. आपके पास आप बहुत ब्रिलियंट हो, तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में काम नहीं करना चाहिए। You should not work in government sector. आपको गवर्नमेंट सेक्टर में काम नहीं करना चाहिए। You should work in public sector.
आपको पब्लिक सेक्टर में काम करना चाहिए। यू शुड स्टार्ट अ न्यू कंपनी, आपको नई कंपनी चालू करना चाहिए। यू शुड इनोवेट न्यू प्रोडक्ट्स फॉर द सोसाइटी, आपको सोसाइटी के लिए नए प्रोडक्ट्स लाना चाहिए। सो दैट इज शुड। किसी को सलाह, अरे 10वीं का बच्चा मिल गया तो तुरंत हम बोलते हैं ना, अरे पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, तो वहां शुड यूज करना है। यू शुड स्टडी हार्ड, आपको बहुत पढ़ाई करना चाहिए। यू शुड आस्क क्वेश्चंस टू योर टीचर, आपको अपने टीचर्स को क्वेश्चंस पूछने चाहिए। यू शुड राइट नोट्स एवरी डे, आपको हर रोज नोट्स लिखने चाहिए। सो दैट इज शुड और शुड। अंडरस्टैंड? ये देखो अभी अंडरस्टैंडिंग चल रहा है, इससे तुरंत बोलने शुड, ये सब मॉडल्स यूज करने के लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना जरूरी है। वो हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, डाउट सेशन में भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, और आगे टीचर्स सभी आपके साथ प्रैक्टिस करने ही वाले हैं। सो शुड मतलब किसी को सलाह देना है या किसी को आदेश देना है। आदेश मतलब सलाह रूप में आदेश, शक्ति वाला आदेश नहीं, सलाह वाला आदेश देना है, तब हम आज यूज क्या करेंगे, शुड यूज करेंगे। ऑलराइट। और किसी को सलाह मांगना है, समझ लो किसी को सलाह मागणं आहे, कुणाला जर सल्ला विचारायचा असेल तरी आपण शुड वापरू शकतो। जसं शुड आय स्टार्ट अ न्यू बिझनेस, संकेत शुड आय स्टार्ट अ न्यू बिझनेस, क्या संकेत मुझे नया बिजनेस चालू करना चाहिए? तो संकेत बोलेगा यस सर, यू आर ब्रिलियंट, यू शुड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। हाँ सर, आप ब्रिलियंट हो, आपको नया बिजनेस चालू करना चाहिए। अंडरस्टैंड? मैं आदित्य को पूछूंगा, आदित्य शुड आई मेक वड़ा पाव फॉर यू टुमारो, क्या मुझे आपके लिए कल वड़ा पाव बनाना चाहिए? Then Aditi will, no sir, you should not make vada pav for me, I will make vada pav for you. Okay, नहीं आपको नहीं बनाना चाहिए, मैं ही आपके लिए वड़ा पाव बनाती हूँ। So in this way that is should मतलब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। should I, मैं अभी नया सीख रहा हूँ, समझ लो चाय बनाना, तो मैं मेरी वाइफ को क्या पूछूंगा, should I add salt in the tea? वो बोलेगी, oh you should not add the salt in the tea, you should add sugar in the tea। आपको सॉल्ट नहीं डालना चाहिए, आपको शुगर डालना चाहिए। अंडरस्टैंड? सो शुड आई ऐड निरमा पाउडर इन द टी? नो यू शुड नॉट ऐड निरमा पाउडर इन द टी, यू शुड ऐड टी पाउडर इन द टी। इन दिस मतलब आपको निरमा पाउडर ऐड करना चाहिए क्या? नहीं, आपको नहीं ऐड करना चाहिए, आपको टी पाउडर ऐड करना चाहिए। तो इन दिस वे आपको किसी को सलाह पूछना भी हो, तो अब दो भी हम क्या यूज करेंगे, शुड यूज करेंगे। ओके, शुड यूज करेंगे। समझ में आया शुड का? शुड आपको किसी को भी सलाह पूछना है, शुड ही। आपको किसी के बारे में भी पूछना है तो अभी अलग अलग सब्जेक्ट्स हम यूज करने वाले हैं बाद में। अंडरस्टैंड? सो सेंटेंसेस तो देखेंगे, हम सेंटेंसेस भी देखने वाले हैं, लेकिन शुड अभी समझ में आ गया आपको कि इफ यू वांट टू गिव द सजेशंस और एडवाइजेस, और इफ यू वांट टू आस्क द सजेशंस और एडवाइजेस, give the suggestions, advices and ask the suggestions and advices, we use should। okay, अब would कब यूज करते हैं? would यूज करते हैं प्लानिंग बताने के लिए। would you come tomorrow, क्या आप कल आएंगे? शेड्यूल्स, किसी का शेड्यूल्स बताना है तो हम क्या यूज करेंगे, would यूज करेंगे। would you arrange a breakfast tomorrow in the morning for me? मतलब मैं कल आ रहा हूँ आपके घर पर, would you arrange a breakfast for me tomorrow in the morning, क्या आप मेरे लिए ब्रेकफास्ट अरेंज करेंगे? would you get some time for me tomorrow after the lecture, मतलब आप मेरे लिए कुछ टाइम निकालेंगे कल लेक्चर के बाद। सो दैट इज would you। अब ये would you हो गया फ्यूचर वाला would you। एक would you होता है पास्ट वाला भी would you होता है। देखो would दो होते हैं, वुड कितने होते हैं? वुड दो होते हैं। एक वुड होता है मॉडल्स, उस मॉडल्स वुड का अर्थ क्या होता है? मॉडल्स वुड का अर्थ होता है आगे के शेड्यूल्स या प्लानिंग बताना हो, तो हम क्या यूज करते हैं? वुड यूज करते हैं। वुड यू टॉक टू योर पेरेंट अबाउट द नेक्स्ट कोर्स, क्या आप आपके पेरेंट्स से नेक्स्ट कोर्स के बारे में बात करेंगे? वुड यू लव टू ट्रैवल विथ मी टुमारो, क्या आपको मेरे साथ कल ट्रैवल करना अच्छा लगेगा? would you like to have a cup of tea with me, क्या आपको मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगे? दैट इज प्लानिंग, शेड्यूल्स, ये सब यूज करेंगे तो हम वुड यूज करेंगे। लेकिन दूसरा वुड क्या होता है? दूसरा वुड होता है विल का पास्ट। विल मतलब क्या होता है? फ्यूचर। उसका पास्ट मतलब पास्ट हो जाएगा। आई वुड कम यस्टरडे बट आई वुडंट कम।
मतलब मैं कल आ सकता था लेकिन मैं नहीं आ सका. Understand? So that is used in the past. So it depends on the sentences formation and the sequence of that speaker. Understand? Then we need to understand. Would is a bit confusing, but you need to understand that would has two uses. First use is planning schedules. Understand? Planning and schedules are always in the future. So that is would you, and would is the past of will. Understand? Now last is have to or has to. तो have to और has to भी बहुत ही important मॉडल्स है. have to मतलब करना पड़ता है. यार मुझे इच्छा नहीं लेकिन मुझे करना पड़ता है. I have to travel every day 10 kilometers. मतलब देखो, I travel every day 10 kilometers मतलब मैं 10 किलोमीटर हर रोज यात्रा करता हूं. लेकिन आई हैव टू ट्रेवल मतलब मुझे यात्रा करनी पड़ती है, मतलब मेरी इच्छा नहीं है. अरे मैं थक जाता हूं भाई. आई हैव टू ट्रेवल. अंडरस्टैंड? आई हैव टू ट्रेवल. आई हैव टू टॉक टू माय ऑफिस. आई हैव टू टॉक टू 100 कस्टमर्स एवरी डे. मेरी इच्छा नहीं है 100 कस्टमर्स को से बात करने की, लेकिन अभी जॉब है तो करना ही पड़ता है. आई हैव टू talk to 100 customers every day. I have to stay at my company for 11 hours. इच्छा नहीं है, कौन यार 11 hours काम करता है, लेकिन I have to do that. लेकिन मुझे करना पड़ता है. तो करना पड़ता है ऐसा बोलना है तो भी आपको have to use करना है. और करना चाहे और करायला पाहिजे इट मीन्स आपको करना चाहिए, इसके लिए भी हाउ टू का यूज करते हैं. मतलब यू हैव टू क्लियर द यूपीएससी एग्जाम टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर. अंडरस्टैंड? तो करना चाहिए ना, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना ही है. सो करना ही है, करना पड़ता है, ये जो सख्ती वाला है, लेकिन बिना विलिंगली, विदाउट विलिंगनेस, मतलब खुद की मर्जी के बिना जो कुछ करना पड़ता है वो सब हैव टू में आता है. शी हैज टू गेट मैरिड. शी हैज टू गेट मैरिड. शी हैज टू गेट मैरिड विथ दैट ऑफिसर बिकॉज इट वॉज अ अरेंज्ड मैरिज. मतलब उसकी इच्छा नहीं थी लेकिन शी हैज टू गेट मैरिड विथ दैट ऑफिसर. लेकिन उसको उस ऑफिसर के साथ शादी करनी पड़ी. मतलब इच्छा नहीं थी लेकिन करनी पड़ी. सो दैट इज हैज टू. दैट इज कॉल्ड हैज टू. ओके, शी हैज टू लर्न इंग्लिश बिकॉज शी इज प्लानिंग टू गो टू लंडन नेक्स्ट ईयर. शी हैज टू लर्न इंग्लिश बिकॉज शी इज प्लानिंग टू गो टू लंडन नेक्स्ट ईयर. उसको अंग्रेजी सीखना ही पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर उसको लंदन जाना है. ओके, सो इन दिस वे if you want to talk about all these models, then you need to remember the uses. Okay, now we will not see the sentences formation today. आज हम sentences formation नहीं देखेंगे क्योंकि मैं आपको confusion नहीं करना चाहता. sentences formation हम कल देखेंगे. sentences formation हम क्या करेंगे? कल देखेंगे. all right, सेंटेंसेस फॉर्मेशन कल देखेंगे. लेकिन अभी आप सभी को मुझे बताना है कि कौन सा मॉडल्स क्यों यूज करना है. ऑलराइट, आपको सभी को बोलना है, मुझे बताना है कैन कब यूज करते हैं, शुड कब यूज करते हैं, डेयर टू यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, सबको बताना है. ऑलराइट, so who is going to tell me the uses? Yes, sir. Who is going to? Okay, हाँ संतोष. संकेत हाँ. Yes. संकेत सर. क्विक मराठी मध्ये सांगा, इंग्लिश मध्ये सांगा, काही प्रॉब्लेम नाही. Sir, can is used for to show ability, and could is the past of can, means to show spoke our past ability. To talk about the past ability. हाँ. Talk about the past ability, and should is used to have something, means should is meant yes. to give suggestions
to give suggestions and have some and to ask suggestions. to ask suggestions. And may means you must means May it means possibility. possibility sir म्हणजे ते पाहिजे Possibility. May That's it means not possibility. It may rain. It may rain. It may rain today. Mumbai Indians may win the IPL Match. Okay, correct. 2021 So match. that is Yeah. possibility. Yeah, Possibility. And might. Might is a past of May, I think. Past of May. Past of May. Possibility in the past. Possibility in the past means Correct. I might get a job in MNC, but I can't get. I get a job. I could not get a startup job. company, That is possibility in the I past. And used to. Used to is used for talking about past action means Habitual action. habitual action. Yeah. Okay. Yeah. Understand? Okay, very good. Who is going to tell next? Sir, can I? Yes, please. Sir, can is used to ask or we can tell like a example. I can. Ability of the subject. Yes, sir. Ability of the subject in present. Yes, sir. Quick. Could is used. And sir, could is the past of should, no? Ability of the subject in past. And it is the ability of past. Okay. And dare to. Teacher, ability of future. No, dare to is used. No. Dare to is used for to express daring. Yes, To sir. express daring of the subject. To express the daring of the subject. Yes, sir. Okay, tell me quick. Next, who is going to tell me? Dare to. And then next. I am Used to is habitual action in past. Used to is habitual action in past. Habitual action in past. Okay. मतलब भूतकाळातील सवय. Habitual action it means भूतकाळातील सवय. Okay. Used to. And then may it means possibility in present. Possibility of. In present. Possibility of the subject. Present, I think. Of the subject in present. In present. Of the subject in present. In present. Okay. Yeah. It is used for the. It is used for Possibility in past. Possibility of subject in past. possibility of the Subject subject in past. of the subject The past. in past. Okay. And then Must. must is used for obligation. Obligation म्हणजे सक्ती. Obligation of the subject. Teacher, Obligation of the subject. sir, can I take a screenshot of this? Yeah, you can take must. And should is used for. Okay, sir. Should is used. Advice. Should is used by to give पाहिजे. and Want. ask and ask advices and suggestions. Advices and suggestions. Would for planning. Okay. And would is used for. Planning for planning. Would next. is Correct. for Want to Planning. want. I want to work. I want. planning and Schedule. schedules. Schedules. Schedule in past. Schedule in Schedules in future. Out to. In future. Talk about. future. Out Okay. to. Sir, Talk about planning and schedules in future. Sir, out to in ask Talk the about. advice. So How to is advice. Advice. Okay. And how to use used want for. नहीं How to use used for. How to is used for. Obligation. Obligation. करना पड़ता है. करना पड़ता है. करायला पाहिजे. करायला पाहिजे. So that is the have to. Sir, want पण घ्या की want. Want is the verb, you know. It is a verb. Want म्हणजे पाहिजे. I want tea. मला चहा पाहिजे. I wanted tea. मला चहा पाहिजे होता. Will मध्ये येत नाही want. Want हे will मध्ये येत नाही. Okay. Got it? Who is going to tell me quick again? Now you have those. माझ्यानंतर सर्वांनी बोला. माझ्यानंतर सर्वांनी बोला. Can is used. Can is used
for the ability of the subject in present. For the ability in the subject. Ability of the subject in present. माझ्यानंतर बोला quick. Okay, mute yourself, everybody. Can is used for the ability of the subject in present. I can swim. मी पोहू शकतो. Could is used for the ability of the subject in past. सब्जेक्टची पास्ट मधील ॲबिलिटी सांगण्यासाठी कुड वापरतात. आय कुड स्विम येस्टरडे. मी काल पोहू शकलो. डेअर टू एक्सप्रेस द डेअरिंग ऑफ द सब्जेक्ट. कर्त्याची डेअरिंग सांगण्यासाठी आपण डेअर टू वापरतो. ही डेअर्ड टू पास इन द एक्झाम. त्याने एक्झाम मध्ये पास होण्याची हिंमत दाखवली. वुड यू डेअर टू राईड अ हॉर्स. तुम्ही घोडसवारी करण्याचा हिंमत दाखवाल का. यूज टू म्हणजे भूतकाळातील सवय. हॅबिच्युअल ऍक्शन इन पास्ट. ओके. आय यूज टू स्विम इन द वेल इन माय चाइल्डहुड. मी विहिरीमध्ये पोहत असे माझ्या लहानपणी. आय यूज टू प्ले मार्बल्स इन द चाइल्डहुड. मी लहानपणी गोट्या खेळत असे. सो दॅट इज यूज टू. मे इट मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट इन प्रेझेंट. म्हणजे कर्त्याची प्रेझेंट मधील पॉसिबिलिटी म्हणजे शक्यता सांगण्यासाठी. क्रियाची शक्यता म्हणजे आय मे सेटल इन न्यूयॉर्क. मतलब मैं न्यूयॉर्क में सेटल हो सकता हूँ. होगा नहीं होगा ये सब भगवान के भरोसे, लेकिन हो सकता हूँ. दैट इज आई मे सेटल इन न्यूयॉर्क. आई मे नॉट गेट द जॉब इन पुणे. मतलब मुझे पुणे में जॉब नहीं मिल सकता है. तो नहीं मिल सकता है मतलब मिल ही सकता है, लेकिन ये बोल रहे हैं ऐसे नहीं मिल सकता है. सो दैट इज कॉल्ड पॉसिबिलिटी. नहीं होने की पॉसिबिलिटी मतलब होना ही है. अंडरस्टैंड. सो दैट इज कॉल्ड मे नॉट. माइट मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट इन पास्ट. मतलब आई माइट कम टू योर होम but I got a lot of difficulties, so I could not come to your home. मैं आपके घर आ सकता था लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम आ गई, इसलिए मैं आपके घर नहीं आ सका. I might come to your home, but I got a lot of difficulties, so I could not come to your home. So that is might. Understand? Must मतलब करना ही है. You must carry your identity card to enter in the company. आपको कंपनी में अंदर आने के लिए आइडेंटिटी कार्ड लाना ही है. अंडरस्टैंड. यू शुड मतलब किसी को सलाह देना है. यू शुड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. आपको नया बिजनेस चालू करना चाहिए. किसी से सलाह लेना है. शुड आई स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. क्या मुझे नया बिजनेस चालू करना चाहिए. सो दैट इज शुड. वुड मतलब करूंगा. आई वुड टॉक टू यू टुमारो. मैं आपके साथ कल बात करूंगा. दैट इज प्लानिंग और शेड्यूल्स. और हैव टू मतलब ऑब्लिगेशन. I have to drive for 10 kilometers every day to reach my office. मुझे ऑफिस में पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ता है. So that is called have to. That is then obligation. Understand everybody? So get the screenshot of this. And you are requested to give me a presentation of it tomorrow. Everybody is going to give me a presentation of these models. And I have one video on models on YouTube. I will just show you that video. So I think everybody should watch that video. Repeat after this. Repeat after this, everybody. Repeat after this. और टू करण्याची आवश्यकता आहे. यूज टू करत असे. Sir, can you share this link of this मी video? पोहू शकतो. Yes, Sanket. Yes, sir. Can you share the link of this video on? I can share you the link now. All right. Yes. Yes, sir. Okay, so it will Yes, be. sir. I will share you in the Sir, because chat box. it's in very easy way. I will share you in the chat box. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. Share it.
All right, fine. So, and it is available on our app also. You can see from our app also. So it is available. Just write down Shantinath and models, then you can get it. Okay. Yes, sir.